یہ کس نے بھیجا ہے؟ آمسیہ سے آیا ہے، بوستانی سپاہی کی طرف سے۔ اس کے کہنے کے مطابق شہزادے نے میرے قتل کے لیے ینیچروں میں سے ایک آغا کو حکم دیا ہے۔ کون ہے وہ ینیچر آغا؟ علی آغا۔ آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، ہمیں اسے پہلے ہی برطرف کر دینا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ آگ بھی بن جائے تو ایک پتا بھی نہیں جلا سکتا۔ ان کی پشت پناہی کرنے والے بہت سے لوگ ہیں ملکہ، ینیچر، پاشا، صوبیدار، ہمیں فوراً کچھ کرنا پڑے گا۔ نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ان کی نظریں ہم پر ہیں، ایک معمولی سی خطا ہمیں برباد کر سکتی ہے۔ تحریر کو پڑھا ہے کیا آپ نے؟ وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ کسی سلطنت کے وزیر اعظم کی جان لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، تم کوئی تدبیر کر لو، کافی ہوگا۔ ملکہ، آقا اس حملے والے حادثے کو ابھی تک نہیں بھول پائے ہیں، اس کی وجہ سے تم پر برہم ہے۔ اب اگر ینیچروں سے تعلقات خراب کرو گے تو بلندی سے پستی میں پاؤ گے خود کو۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے آپ پر قابو رکھو، پرسکون رہو۔ آج تم یہاں جس مقام پر ہو، اس مقام پر رہنے کے لیے ذہانت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل استعمال کرنی ہوگی تمہیں۔ شیخ الاسلام فنیری زادے کے متعلق کوئی نئی خبر آئی ہے کیا؟ اب تک نہیں ہے ملکہ۔ یہ مسئلہ اہم ہے۔ مصطفیٰ کے طرفدار شیخ الاسلام علماء کرام اور عوام کی تائید حاصل کر کے ہم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں رستم۔ بجا فرمایا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہاں ہے تمہارا ذہن؟ مسئلہ آپ جانتی ہیں ملکہ، علی آغا نام کے ملعون کی جان لینے تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ کیسا سکون رستم؟ یاد رکھنا، جتنی بلندی پر جاؤ گے ہوا اتنی ہی تیز ہوگی۔ تمہارا یہ مقام تمہیں موت کی جانب لے جا سکتا ہے رستم، اس وجہ سے تمہیں سکون کی نہیں، طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقتور بنو تاکہ کوئی بھی ہوا تمہیں ہلا نہ سکے اپنی جگہ سے۔ آپ فکر مت کیجیے، مجھے ملکہ آپ اور آقا کے علاوہ کوئی اور میری جگہ سے نہیں ہلا سکتا کبھی۔ اعلیٰ، فنیری زادے کے لیے تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ وہ خود برطرفی چاہیں، اس کے لیے میں کوشش کروں گا۔ آگ کو اپنے ہاتھ میں لینے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ کام کسی اور کو سونپ دو۔ ہمارے وفادار اور قابل اعتماد شخص کو اس پر مامور کرو۔ ایسا کوئی ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن میں تحقیقات کر کے آپ کو خبر کر دوں گا۔ آپ بھی اجازت دیں، کیونکہ میرا نماز جمعہ میں شامل ہونا بہت ضروری ہے ملکہ۔ بیاضت اور آقا کے درمیان جو فاصلے ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا، صرف انہی کے نہیں رستم کے بھی۔ میں بھی آپ سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی والدہ، رستم کی حالت کافی دنوں سے عجیب سی ہے، وہ کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ آقا حملے والے حادثے کو اس کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ کافی پریشان ہے۔ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ والدہ آپ کیسی ہیں؟ سنا ہے کہ کنیزوں کو خلوت میں بھیجنا شروع کر دیا آپ نے۔ یہ کوئی راز نہیں رہا، خاتون خوابگاہ جا چکی ہے۔ برسوں مجھے اسی ہتھیار سے مارنے کی کوشش کرتے رہے، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ لیکن اب قبول کرنا ہوگا مجھے، کیونکہ مقابلہ کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے خود میں نے منتخب کر کے بھیجنے کو ترجیح دی۔ لیکن اب بھی سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ زینب خاتون کیسی ہیں؟ عافیت سے ہوں گی امید ہے۔ خدا کا شکر ہے ٹھیک ہے ملکہ، اپنی بیٹی کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں۔ اولاد کی جوانی کے ساتھ ان کے مسائل بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ شیخ الاسلام فنیری زادے کے حوالے سے مستقل بعض پریشان کن باتیں سن رہی ہوں میں۔
किन परेशान कुन बातों का तस्करा कर रही हैं मलिका? वैसे शेखुल इस्लाम साहब के बास ख्यालात मुझे पसंद नहीं हैं, ये बात दुरुस्त है। इस मसले पर आप हक पर हैं, ये बात आश्कार है। वैसे आका के भी यही ख्यालात हैं। दरअसल मैं ये चाहती हूं कि उस मुकाम पर आपको होना चाहिए, क्योंकि आप तजुर्बे की बदौलत ज्यादा हक रखते हैं। आपकी बहुत नवाजिश है मलिका, मैं क्या कह सकता हूँ। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, इसके सिवा कुछ नहीं। किस्मत पर कनात करके यूं चुपचाप इंतजार करना भी तो मुनासिब बात नहीं है ना? क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मगर मैं इसे मुनासिब समझता हूँ। असीम रब ने इंसान को अक्ल शऊर अता किया है मलिका। दुरुस्त और गलत का अंदाजा लगाकर अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो फिर अबू सऊद साहब, सल्तनत आलिया के मुफाद की खातिर बाज अहम फैसले करने की जरूरत पेश आती रहती है। बिल्कुल, मैंने आज तक अपने लिए कभी किसी मकाम की ख्वाहिश नहीं की मलिका, और आइंदा भी नहीं करूंगा। आका मुझे जहां भी मुकर्रर करेंगे मैं वहीं रहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है। आप दुरुस्त रास्ते पर चलते रहें, यही काफी होगा। मगर एक दिन हम जरूर यकजा होंगे, क्योंकि हमारा रास्ता एक ही है। मलिका, रुस्तम, अबू सऊद साहब से गुफ्तगू हुई तुम्हारी? ज्यादा अहम मसला दरपेश आ चुका है मलिका। दरबार में एक कासिद आया था और उसके मुताबिक अली आगा ने कल मुझे यानीचरों की लश्करगाह में मदऊ किया है। उम्मीद है कबूल कर लिया होगा तुमने। मजबूर हो गया था मैं। अगर नहीं गया तो वो लोग समझेंगे कि मैं डर गया हूँ, और अगर जाऊंगा तो मालूम है क्या होगा। क्या हो जाएगा? तुम्हें बुलाकर दस्तरखान पे जहर तो नहीं दे देंगे ना वो लोग? सब कुछ मुमकिन है मलिका। वहां मेरी जान भी ले लें तो कोई क्या कर लेगा। आका चंद सर कटवा देंगे और चंद कुर्बान कर दिए जाएंगे, मगर मैं तो मर जाऊंगा। तुम्हारे 3 ढाले हैं रुस्तम। पहली मैं, दूसरे मेहरमा, और तीसरे खुद आका हैं। दस्ते दुश्मना में जितने भी तीर और तफंग मौजूद हैं, वो इन 3 ढालों को टुकड़े करने से पहले तुम तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये बात कभी सहन से मत निकालना। रियासत महल से चला गया है। तुम्हें मालूमात नहीं थी क्या? वो तो थी बिल्कुल, मगर आप दोनों के लिए परेशान थी। आपकी क्या गुफ्तगू हुई? आओ। मेरे आका, नसू अफंदी तशरीफ लाए हैं, मसला अहम है। आने दो उसे। आका, मलिका। खैर तो है नसू अफंदी, इतना अहम मसला क्या है? ये नीचर सिपाहियों में शदीद बेचैनी पाई जाती है, और रुस्तम पाशा और अली आगा के दरमियान कोई बदमज़गी हुई जो इतनी बढ़ गई कि तलवारें मयान से निकल आईं। क्या ये लोग खुद को मैदान जंग में समझ रहे हैं? कहाँ है रुस्तम पाशा? कुछ देर कबल दीवान में पहुंचे हैं आका, अगर आप चाहें तो। बस इसी की कमी रह गई थी। मैंने जो सुना है क्या वो सच है रुस्तम पाशा? ये नीचर लश्कर गाह में तलवारें निकल आई। मैं भी इस मौजू के मुतालिक आपको मालूमात देने के लिए खुद आपके पास आ रहा था। आपका मसला क्या है? अली आगा अपनी हद को फरामोश करके मेरी मकाम के मुतालिक नाज़िबा कलमात अदा कर रहा था। आका, मैं उसे कई बार नसीहत कर चुका हूं आका, लेकिन जब उसने मुझे मारने की धमकी दी तो मैं अपनी हिफाजत करने पर मजबूर हो गया। इसलिए उनकी बरतरफी का फैसला लिखवाकर आपके पास आने वाला था। अली आगा कहाँ है? वो बाहर मुंतजर खड़े हैं आका। अंदर बुलाओ। अली आगा, सुना है कि तुमने रुस्तम पाशा को मारने की धमकी दी है, क्या ये दुरुस्त है? हरगिज नहीं आका, मेरी क्या मजाल कि मैं पाशा मोहतरम को धमकी दूं। यूं ही बैठे बैठाए म्यान से तलवारें बाहर नहीं निकलती। रुस्तम पाशा मोहतरम को कवानीन के मुताबिक जोराने पर मदऊ किया था आका। दरअसल मैं इन्हें सिपाहियों को लाहक परेशानियों से आगाह करना चाहता था। इस दौरान खाना पेश किया गया
पाशा ने हमारी रिवायत की तौहीन करते हुए पहले खुद ना खाया बल्कि खाने को अपने माफी से चखवाया, जैसे उसमें जहर मिला हो। इनका ये जिल्लत आमेज रवैया मुझे और तमाम यनीचरों को बिल्कुल पसंद ना आया और इसीलिए बात बढ़ गई। इनके मुहाफिजों ने हम पर तलवारें तान ली, लेकिन सुल्तान के मेजबान की हैसियत से किसी एक भी यनीचर ने इनको किसी भी किस्म का जवाब नहीं दिया। वाकया बस यही कुछ था आका। क्या दुरुस्त है ये जहर वाला मसला? ये सिर्फ उनके लिए मखसूस नहीं था, मैं हर जगह पर ऐसे एहतियात से काम लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। अमीरुल बहर पाशा, मुझे आपसे इस वाकये के मुतालिक तफसीली मालूमात चाहिए, उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। जो हुक्म बादशाह सलामत करो। वालिदा, क्या ये सच है? क्या वाकई वो खातून उम्मीद से है? यूं लगता है जंगल की आग की तरह खबर फैल गई, कोई भी बेखबर नहीं रहा इस बात से। नहीं, मैं तो रुस्तम की वजह से आई थी। सहन में कनीजों से सुना मैंने। रुस्तम को क्या हुआ है? ये नीचरों से बदमस्ती की अभी खबर मिली मुझे। हर बात मुझे आखिर में ही क्यों मालूम होती है? तुम्हारी हिफाजत की पेश नजर मेहरमा। मुझे हिफाजत की जरूरत नहीं है वालिदा, रुस्तम को है। वो काफी परेशान है, उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा। बाबा से बात हुई क्या आपकी? वो क्या फैसला करेंगे? तहकीकात जारी है इस वाकये की। तुम इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। मैं कैसे इत्मीनान से रह सकती हूँ जबकि मेरे शौहर की जान लेना चाहते हैं कुछ लोग। लगता है उसकी हिफाजत के इकदाम काफी नहीं रहे। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तुम पहले तो इस शादी की वजह से मेरे भी खिलाफ हो गई थी, और अब अपना हाल देखो कि तुम उसके लिए तड़प रही हो। तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी, मैंने कहा था। मसला मोहब्बत का नहीं, रुस्तम मेरा शौहर है, इस जहां के बादशाह सुल्तान सलमान खान की इकलौती दुख्तर का शौहर। रुस्तम का वकार मेरा वकार है। तुम खातिर जमा रखो। रुस्तम जब तक हमारा वफादार रहेगा उस वक्त तक उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी वफादारी पर आपको शक है? तुम खुद मुशाहिदा कर लो मेहरमा, चारों जानिब से हम पर हमले जारी हैं। हमें दुश्मनों से जो खतरा है वो तो अपनी जगह, लेकिन रब से दुआ है कि दोस्तों से महफूज रखे। वालिदा, बाबा ने रुस्तम को अपने पास बुलवाया है। लगता है कोई फैसला सुनाया जाएगा। क्या आपने उनसे कोई बात की? परेशान मत हो मेहरमा, जो दुरुस्त होगा आका वही करेंगे इंशाअल्लाह। मैं खौफजदा हूँ बहुत। रुस्तम के खिलाफ साजिश की गई है, वो बेकसूर है। मलिका, क्या सूरत हाल है रुस्तम पाशा? आका ने क्या फैसला सुनाया? मुझे जिला वतन कर दिया है। जिला वतन? आका ने हफ्ते भर में हर सिख हर्जी को वीना रियासत जाने का हुक्म फरमाया है। अब सरहदों पर ही मुलाकात होगी हमारी। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अरसे के लिए दूर भेजने में उन्हें फायदा नजर आ रहा है। वालिदा, ये कैसे हो सकता है? आका कैसे ये फैसला कर सकते हैं? शुक्र करना चाहिए तुम्हें, इससे ज्यादा भी बुरा हो सकता था। हमारी शिकस्त है मलिका, दुश्मनों ने जो चाहा था वो हासिल कर लिया। आप तो जानती हैं मेरे वकार को पैरों तले रोनना चाहते थे। मुझे सिर्फ एक यनीचर आगा की वजह से जिला वतन कर दिया गया है। ये सुनकर उनके हौसले मजीद बुलंद हो जाएंगे। हर काम में कोई खैर होती है रुस्तम, बल्कि इस हादसे से तो सबक लेना चाहिए तुम्हें। आज की बात तुम खौफ से जान छुड़ाकर अक्ल इस्तेमाल करोगे अपनी। मैं खौफजदा था, ये दुरुस्त है, लेकिन मरने से नहीं,
बल्कि किसी को खो देने से, खास तौर पर महरमा सुल्तान और अपनी बेटी हुमा शाह को। मुझे अब इजाजत दें। फातिमा सुल्तान कैसी हैं? माशाल्लाह काफी खुश है, लेकिन ज्यादा अरसा खुश नहीं रहेगी। लगता है आपने उनके मुतालिक कुछ सोचा है। वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। तुम अफसरदा सी लग रही हो, क्या मसला है? सुबह से तबीयत बोझल सी हो रही है। तबीबा को दिखाया तुमने? महरमा, 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 क्या हो? कैसी तबीयत है तबीबा खातून? जहर तो नहीं दिया गया? नहीं पाशा मोहतरम, ऐसी अलामत नहीं कोई। तो फिर क्या हो गया? क्यों बेहोश हो गई? बुखार हो गया है क्या? मेरे ख्याल में इनके मैदे में तकलीफ हुई थी मलिका। बुखार तेज नहीं है, 1-2 दिन आराम करना होगा। मैं दवा दे देती हूँ। तुम अच्छी तरह मुआयना करो खातून। खाने की वजह से कैसे हुआ? कैसे मालूम जहर नहीं दिया गया? रुस्तम, मलिका सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनकी ये हालत हो गई? फारिहा, मलिका, आका के खुसूसी हकीम को खबर दो, वो भी देख लें आकर, ताकि इत्मीनान हो जाए। आपका जो हुक्म मलिका। बाबा। मेहरमा, मेरी खूबसूरत शहजादी, ठीक हो तुम? हमें डरा दिया था तुमने। खास तौर पर रुस्तम पाशा को। ये बहुत परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। शहजादी, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है कि आप होश में आ गई। मुझे तो जैसे सारी कायनात मिल गई। रब आपकी हिफाजत करे। हुरम, दुख्तर कैसी है? क्या बेहतर है? परेशान ना हो, बेहतर है। तबीबा ने दवा दी है, सो रही है। 1-2 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगी बताया है। अल्लाह इसे शिफा दे। हुरम, चलो तुम भी जाकर आराम कर लो, मैं यही हूं। जब तक मेरी औलाद सेहतमंद नहीं हो जाती, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ सुलेमान? जहन में मुख्तलिफ वसवसे मुझे परेशान करते हैं। अब तक मेहनत का शौक ही खत्म नहीं हो सका। उसका मकाम जन्नत हो। आमीन। अपने रब से हर दिन दुआ करती हूँ, अगर मेरे घर में किसी की जान लेनी है तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी औलाद की जान बख्श दे। आओ। मेरे आका, मैं मुग़ल नहीं होना चाहती थी, लेकिन मैं फिक्रमंद हूँ। कैसी है मेहरमा? मेहरमा ठीक है, सो रही है। मेरा परवरदिगार इसे नजर बद से महफूज रखे। बिल्कुल अचानक इसे क्या हो गया?
क्या कोई सदका दिया गया है? देखो जरा, रुस्तम पाशा के आका की अमानत की इस तरह हिफाजत कर रहे हैं। तुम कैसी हो हुरम? आपके सामने हो शहजादे। तुम्हें अफसरदा होने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान रखो, मेरी भतीजी जल्द ठीक हो जाएगी। तुम तो पहले ही बीमार हो, जरा आराम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सेहत भी खराब हो जाए। अजीम मुसीबत टल गई है आका। एक तरफ मेहरमा, दूसरी तरफ नाज़नीन। शुक्र है कि दोनों ठीक हैं। नाज़नीन को क्या हुआ था? कल रात उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इस हालत में तो ऊंच नीच होती रहती है। दरअसल वो पहली बार उम्मीद से हुई है ना, इसलिए घबरा गई थी। खैर उसे दवा पिला दी है और अब वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आप हंसमुख तबीयत की मालिक है शहजादी। हरम में सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है आपकी आमद से। मुस्कुराहट मेरे आने से नहीं, बल्कि ये तो आने वाले शहजादी के बाइस है हुरम। बहुत बाबरकत साबित होगा वो हमारे खानदान के लिए इंशाल्लाह। मैं महल वापस जा रहा हूँ, तो मेरे हमरा चलो फातिमा। पूरम सूरत हाल जब बेहतर हो जाए तो मुझे खबर देना। मेरे आका। रुस्तम पाशा अभी तक यहाँ हो? मैं समझी हर जगह गुबीना जा चुकी होंगी। मेहरमा सुल्तान को इस हाल में छोड़कर मैं जाना नहीं चाहता था शहजादी। हाला, मेहरमा जब सेहतियाब हो जाए तो तुम रवाना हो जाना। उमूर सल्तनत किसी का इंतजार नहीं करते। मजीद वक्त जाया ना करो रुस्तम, जल्द हरसी को भी ना जाओ, वरना तुम आका के गैसो गजब का निशाना बन जाओगे। जाना ठहर चुका है मलिका, लेकिन जाने से पहले इंतकाम लेना शर्त है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि इंतकाम के मुतालिक नहीं सोचोगे। आपने ये कहा तो था, लेकिन मेरा शक दुरुस्त निकला मलिका। ये नीचर वाले हादसे के पीछे यकीनन साजिशकार फरमा थी। कुछ भी इत्तेफाक से पेश नहीं आया था। साजिश कैसी? आखिर कौन कर सकता है ये साजिश? अमीरुल बहर पाशा अली आगा के साथ वो इस साजिश में शरीक हैं। जाहिर है जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अमीरुल बहर पाशा का ही हाथ है। अली आगा के आदमी ने सब कुछ बता दिया है। अपनी बेटी मेहरुन्निसा को भी आमसिया भेज दिया है उन्होंने। शहजादे मुस्तफा से राब्ता उसकी बेटी करवा रही है। अगर ऐसा ही है तो बुस्तान सिपाही ने क्यों खबर नहीं भेजी हमें? उसे बहुत पहले ही मारा जा चुका है मलिका। मुझे खबर देने के बाद शायद वो बेचारा पकड़ा गया था। शहजादा अपनी औकात से बड़े काम कर रहा है। उन्हें मशवरे देने वाला बारबरूस है। ऐसा लगता है कि पाशा शहजादे को तख्त पर बिठाकर सल्तनत को संभालना चाहते हैं मलिका। ऐसी ख्वाहिशों का खमियाजा भुगतना ही पड़ता है रुस्तम। हमें उसे ये बात समझा देनी चाहिए। क्या उसका किस्सा तमाम कर दिया जाए? नहीं, उसकी दुख्तर अजीज का किस्सा तमाम कर दो।